All right, since this is a live situation that we are in fact bringing to you viewers from the ground and the situation is actually tense, we seem to have some kind of a network problem over there with my colleague who's present on the ground, but he's getting you those visuals, and we showed you how in fact the BJP workers moved across the barricade and came face to face with the TMC protesters over there, which according to my colleague is right in front of the Chief Minister's residence. My colleague Yash is still with us on the broadcast. Yash, obviously now the situation is not calm anymore. We are seeing a very tense moment. This was in fact we saw that on our screens. All right, I believe Rainik is back with us on this broadcast. He's on the ground. Let's get in a word from him. Rainik, आप हमें दिखा रहे थे कि फेस टू फेस टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो आ गए थे. पुलिस क्या सिचुएशन हैंडल कर पा रही है? All right, we'll try to reconnect. We'll try to reconnect with my colleague over there who's present on the ground, getting you those visuals. For now, we are getting you visuals of the nomination rally that is in fact taking place over there in Bhawanipur, and we can see these are shots of the Home Minister who's come here to support the nomination of Suvendu Adhikari. Let me go across to my colleague Yash for more on this. Yash, this was supposed to be a nomination rally. We are seeing tense moments. The police are trying to control the situation over there. Yes, Shivani very rightly pointed out, this was supposed to be just a nomination rally, and as we speak, what we see live on our screens right now is the Union Home Minister Amit Shah with leader of opposition in the West Bengal, Suvendu Adhikari, going to file the nomination. But the area that they are going through is the point of contention. The area where both Mamata Banerjee and Suvendu Adhikari are contesting from is the point of contention. What the right side of our screens right now shows our NewsX live on ground zero. I think we have a connection back with our reporter. Let's see if he is available to talk to us. Rainik, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? रैनिक, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, गेट अस द ग्राउंड सिचुएशन. यहाँ पर सिचुएशन बहुत टेंस लग रहा है. पुलिस मैनेज कर पा रही है कि नहीं? देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा. इस वक्त मैं मौजूद हूँ ममता बनर्जी के घर के बाहर, ममता बनर्जी रेसिडेंस के बाहर ही. ठीक बीजेपी का ये जो रैली, ये मैसिव रैली चल रहा है. बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का नॉमिनेशन रैली के दौरान ही एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने जो टीएमसी कार्यकर्ता है उनके तरफ से टीएमसी फ्लैग को लेकर प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, और बीजेपी कार्यकर्ता के साथ भी उनका जो झड़प वो देखने को मिल रहा है. मैसिव ये जो रैली है, इस रैली को रोकने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया गया था, मगर पुलिस का बैरिकेड तोड़कर ये रैली जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा कि एकदम होम मिनिस्टर अमित शाह और शुभेंदु अधिकारी एक साथ मिलकर ये रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वे नॉमिनेशन रैली में पार्टिसिपेट किया जा रहा है. उसी जगह पर एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने तृणमूल कर्मी समर्थक भी इधर मौजूद है. तृणमूल का झंडा लेकर वो लोग प्रोटेस्ट जो है वो दिखा रहे हैं. शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ में ये जो प्रोटेस्ट वो तृणमूल कांग्रेस कर्मियों की तरफ से दिखाया जा रहा है. लगातार ये प्रोटेस्ट में लोगों की तरफ से वो बैक्स दिखाया जा रहा है, मगर ये जो रैली वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. पुलिस की तरफ से पूरा जगह को सिक्योर किया गया है. कोलकाता पुलिस का मैसिव फोर्स मौजूद है.
मिनिस्टर अमित शाह, उसके साथ इस जगह का शपन दास गुप्ता जो कि कैंडिडेट है राष्ट्रीय असेंबली का, बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट शमीक भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, भवानीपुर जो असेंबली कंस्टिट्यूंसी है उनका जो कैंडिडेट शुभेंदु अधिकारी वो भी मौजूद है। और उनके सामने लगातार ये जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता की तरफ से ये जो आगे इसको कंडक्ट किया जा रहा है और एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने ये रैली जो है वो आ पहुंचा है। एकदम मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए जो देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रैली जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बिल्कुल रैनिक, हम देख पा रहे हैं कि अब फाइनली आपने दिखाया कैसे पुलिस ऑफिशियल्स ने एक ह्यूमन चेन बनाया है और उसके बाद ही जो रैली है वो कैरी ऑन कर पा रहा है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है। आप अगर हमें और बता सकते हैं कि ये कितनी देर और रैली चलेगा, कहाँ तक जाना है और सिचुएशन को काम करने के लिए ऑफिशियल्स क्या और फोर्स बैकअप के लिए मंगवा रही है? We are getting you those live visuals from the ground. Our colleague is present on ground zero as well, and you can see over there as well a cavalcade also making its way through the crowd, and like our colleague has been pointing out that the Home Minister and शुभेंदु Adhikari's convoy has been given permission to move through the area. The police officials over there have in fact made a human chain. They are trying to prevent the TMC supporters from disrupting this nomination rally. Obviously, this situation, the political battlefield is heating up in West Bengal, and we are seeing, TMC supporters and also BJP supporters come face to face during this nomination rally for शुभेंदु Adhikari. And remember that the Union Home Minister Amit Shah is also present here. So there is a lot of to and fro that is happening on the ground right now. TMC supporters are voicing their support for Chief Minister Mamta Banerjee, while the BJP supporters are stating that they should be allowed to in fact carry out their nomination rally peacefully. रैनिक, अगर आप वापस हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी अब धीरे धीरे स्लोली रैली जो है वो आगे बढ़ रही है, वो और कितने देर तक जारी रहेगी और यहाँ से पुलिस ने क्या और बैकअप मंगवाया है, क्योंकि ह्यूमन चेन जब बनाते हैं तो सारी फोर्स यूटिलाइज हो जाती है। देखिए एकदम अमित शाह का कन्वॉय मैं दिखाऊंगा। एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने से अमित शाह को कन्वॉय करके ले जाया जा रहा है, क्योंकि जिस गाड़ी में वो लोग थे उस गाड़ी से उतारकर होम मिनिस्टर का जो कन्वॉय है उस कन्वॉय में उठा लिया गया है, क्योंकि अभी भी मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने मैसिव प्रोटेस्ट। एक तरफ बीजेपी सपोर्टर्स चोर कह रहे हैं, दूसरी तरफ टीएमसी सपोर्टर चोर कह रहे हैं, मगर अमित शाह का ये जो कन्वॉय इनको पास किया जा रहा है। एकदम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल सिक्योरिटी देकर अमित शाह को इस जगह से जाना पड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी को साथ में लेकर अमित शाह का ये जो कन्वॉय ये नॉमिनेशन जमा करने के लिए जा रहा है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए कि किस तरीके से उस एरिया को क्रॉस करने के लिए जो गाड़ी का बंदोबस्त बीजेपी की तरफ से किया गया था उस गाड़ी छोड़कर जो खुद का जो होम मिनिस्टर का कन्वॉय है उस कन्वॉय से ले जाना पड़ा और सिक्योरिटी पूरा घेर कर उनको ले जाया जा रहा है। अभी नॉमिनेशन रैली के लिए जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मैं एक बार आपको टॉप एंगल से दिखाने का कोशिश करूंगा। तस्वीर आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से मैसिव टसल देखने को मिल रहा है। एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके साथ साथ ही जो टीएमसी कार्यकर्ता है उनका जो टसल वो लगातार देखने को मिल रहा है। एकदम देख ही सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता इधर मौजूद है और एक तरफ टीएमसी कार्यकर्ता भी इधर मौजूद है। टीएमसी और बीजेपी लगातार ये टसल में जुटे हुए हैं। कोलकाता पुलिस की तरफ से इन लोगों को रोकने का कोशिश किया जा रहा है। एकदम तस्वीर देखिए कि किस तरीके से
किस तरीके से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता के बीच में टसल चल रहा है। एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने का तस्वीर है ये। एकदम ममता बनर्जी के घर के सामने जो बैरिकेड रहता है, उस बैरिकेड के ऊपर टीएमसी कार्यकर्ता अभी पहुंच चुके हैं। टीएमसी कार्यकर्ता उठकर प्रोटेस्ट दिखा रहा है। जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनके तरफ से भी लगातार प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से लोग हटाने का कोशिश किया जा रहा है, मगर फिर भी टीएमसी और बीजेपी आपस में भिड़ चुके हैं। एकदम इलेक्शन के ठीक पहले, इलेक्शन का ठीक पहले एकदम भवानीपुर एक हॉट सीट बन चुका है। एकदम हॉट सीट भवानीपुर में लगातार टसल जो है वो देखने को मिल रहा है। नारा क्यों लगाता है? नारा कौन लोग लगाता है? वो लोग जूतों दिखाता है, वो लोग मारते हैं, तेरे तेरे मारते हैं। बॉबी हकीम जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद, बॉबी हकीम जिंदाबाद। আমাদের ওয়ার্ড ভবানীপুর ওয়ার্ড, আমরা তো এখানে থাকবো, ওরা এখানে কেন? हेलो जी बिल्कुल रैनिक, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जो हमें विजुअल्स दिखा रहे हैं, आप समर्थकों से भी बात करिए कि दोनों पक्ष क्या कह रहे हैं। बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं उनकी रैली को डिस्टर्ब किया गया है, वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। और टीएमसी ऑब्वियसली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और ये कब तक जारी रहेगा, ज़रा उनसे बात करिए। देखिए बीजेपी जो कार्यकर्ता है उनको हटाने का कोशिश पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस के साथ उनका हाथापाई लगातार चल रहा है। मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा। एकदम देखिए किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ता के साथ जो पुलिस का टसल चल रहा है। पुलिस की तरफ से उन लोगों को हटाने का कोशिश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। बीजेपी कर्मी समर्थक को हटाने का कोशिश किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी कर्मियों को भी एकदम बैरिकेड के अंदर भेजा गया है। बैरिकेड के अंदर वो लोग हैं। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा जो बीजेपी कार्यकर्ता है। চোর হাটাও, দেশ বাঁচাও। আমাদের পশ্চিমবাংলাকে বাঁচাতে হলে অবশ্যই ঘরে ঘরে আমাদের খেলতে হবে। শুয়ে পড়েছে মমতা, মমতা ঘরে শুয়ে পড়েছে। ये जो प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? क्यों प्रोटेस्ट चल रहा है? শুরু তৃণমূল পার্টিটা একটি চোরেদের পার্টি। এখানে কোনো ভদ্রলোক নেই। मैडम हटाया क्यों जा रहा है? मैडम हटाया क्यों जा रहा है? हम ही लोग को तो हटाएगा। पुलिस तो ममता बनर्जी का ही तो है, हम लोग का तो नहीं है। वो ममता हटाएगा ही। कहीं मिचिल मीटिंग में पुलिस हम ही लोग को अटकाता है। वो लोग को देखिए, वो लोग को खमाता है हटाने को। एक जन को भी हटाया, हम ही लोग को हटाएगा। चट्टी चट्टा पुलिस है, पूरा चट्टी चट्टा पुलिस है। ममता চোর হাটাও, চোর হাটাও। ममता बोलती है कि नाच तो नाचता है, ममता बोलती है कि उठ तो उठता है, बैठता है। एकदम चट्टी चट्टा पुलिस है, एक जन को भी नहीं हटाया। हम ही लोग को हटाया। সবাই চোর, ভাইপো চোর, পিসি চোর, তৃণমূলের সবাই চোর, চোর, চোর। জনগণ সরকার, এই জনগণ সরকার আমরা চাই না। সবাই চোর। ভয় পেয়েছে, মমতা ভয় পেয়েছে, সব চোরগুলোকে রেখে দিয়েছে এখানে। সব চোর এখানে প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা যা देखिए किस तरीके से देखिए पुलिस के सामने प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। एकदम बीजेपी टीएमसी आमने सामने है और देखिए इसके पुलिस की तरफ से लगातार इन लोगों को हटाने का कोशिश किया जा रहा है। एकदम पुलिस इधर मौजूद है। टीएमसी का कार्यकर्ता एकदम बैरिकेड के ऊपर उठकर उनकी तरफ से प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है। जो रैली चल रहा है, इस रैली के ऊपर से रैली के ऊपर ये प्रोटेस्ट दिखाया जा रहा है, काला झंडा दिखाया जा रहा है, गो बैक स्लोगन दिखाया जा रहा है। लगातार ये तस्वीर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से ममता बनर्जी के घर के सामने ये हालात बन चुका है। पूरा मैसिव पुलिस फोर्स को इधर डिप्लॉय किया गया है और जो भी बीजेपी कार्यकर्ता है उनको हटाया जा रहा है। मैं एक बार बात करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को हटाया क्यों जा रहा है? काय हाथ दे रहे? हम लोग तो कुछ नहीं, चोर को चोर बोल रहे। वो तो चोर का दल है ना। कोयला चोरी किया, गाय चोरी किया, सब तो चोर करके पूरा वेस्ट बंगाल में पूरा चोर में भर्ती है तृणमूल दल में। ये लोग जितना चोरी किया, इस बार तृणमूल का विसर्जन देना है। एकदम देखिए किस तरीके से प्रोटेस्ट उसके बाद काउंटर प्रोटेस्ट ये देखने को मिल रहा है। एकदम
तृणमूल कर्मी समर्थक के साथ अभी भी झड़प जो है वो देखने को मिल रहा है लगातार। बिल्कुल रैलिक, बीजेपी कार्यकर्ता आप बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, दे आर रेजिंग अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इफ अगर परमिशन ली गई है रैली के लिए तो उनको क्यों हटाया जा रहा है वहां से? एकदम देखिए, बीजेपी की तरफ से परमिशन लिया गया था, मगर उसके बाद पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी पर्पस पर ये रैली को रोकने की कोशिश किया जा रहा था। आप लोगों का ये रैली का परमिशन था तो हाँ, बिल्कुल था। उसके बावजूद रोका क्यों जा रहा है? रोका जा रहा है, दीदी भूल समझ गई है कि उनका कचिया हिलने वाला, इसीलिए दीदी एड़ी चोटी का जोर लगा करके अब लग गई है बीजेपी को रोकने। लेकिन दीदी ये भी समझ ले कि इस बार बीजेपी सरकार बंगाल में बनने वाली है। एकदम रैली का परमिशन होने के बावजूद भी लगातार ये इस रैली को रोका गया है, और जिस तरीके से मैं दिखाने का कोशिश करूंगा, एकदम सेलिब्रेशन एक तरफ बीजेपी का पूरा ये जो कार्यक्रम वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, दूसरी तरफ जो टीएमसी कार्यकर्ता है उनकी तरफ से ब्लैक फ्लैग भी दिखाया जा रहा है, वो बैक स्लोगन उठाया जा रहा है। मैं एक बार बात करने का कोशिश करूंगा, मैं जाने का एक बार कोशिश करूंगा, अंदर जाके मैं पूछने की कोशिश करूंगा।